हाय, मैं बालकृष्ण खोजी। वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। और आज के सेशन के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं द डेटाबेस कनेक्शंस विद लाइक द सी शार्प एंड द एसक्यूएल। ओके, सो लाइक हम लोग अभी आज देखेंगे कि लाइक हाउ टू कॉन्फ़िगर और डेटाबेस विद लाइक द सी शार्प विद द बैकएंड कोड विद द बैकएंड कोड एप्लीकेशन। तो प्रीवियस वाला सेशन हमारा जो था लाइक उसके अंदर हम डिस्कस करते लाइक एसक्यूएल के कुछ फंक्शनलिटी दैट इज द ग्रुप एंड हैविंग क्लॉज। ओके, सो जितने भी एसक्यूएल के जो क्वेरीज हम लोगों ने यूज किए हैं, so now we'll show like how to use that like the SQL query inside our the backend code application. Okay, so we'll see like some implementations part like the database connection setups, what steps we require to like connect our database to the C sharp in the backend application. So we'll go like the step by steps. Okay, so first of all like we'll come to like what concepts like we require to like connect our database with the C sharp. So basically like we will use like the ADO.NET concepts. In the C sharp is provided like ADO.NET to configure our database. So actually the ADO.NET, it is provided like some of the data sources, and with the help of that like we can connect any database to them. See, what are the, like the data sources that are provided by the like ADO.NET? See, actually like there are the different data sources are there, but mostly like we are going with like the MS SQL, that is SQL Server database. Okay, and the .NET is mostly compatible with like the SQL servers only, that is the MS SQL only. So what are the data source like we required now in the like the database connection, so that all the things are provided in the ADO.NET only. So for the like database configurations, for the database connectivity, like we require the ADO.NET. So it is nothing, ADO.NET is nothing but it's configuring our database with the data source, which data source like we are using over there. Okay, so like data source means like what, like there are like the different data sources are there. It's depend on what कि क्या क्या डेटा सोर्सेस आप यूज कर रहे हो, कि कौन से डेटाबेस, अलग अलग टाइप के डेटाबेसेस उसके अंदर भी आते हैं डेटा सोर्सेस में। अगर आप कंपेयर करने जाओगे, जैसे अगर जावा के अंदर अगर आप आओ तो जावा में लाइक आपको अलग अलग मिलते हैं, जैसे ओरेकल आता है, माइस्क्यूएल का आता है। यहाँ पे आपको मोस्टली मिलेगा एमएस एसक्यूएल के लिए। ठीक है, तो एमएस एसक्यूएल का डेटा सोर्स हमें देखना है कि वो कैसे यूज किया जाता है डेटा ADO.NET के अंदर, जहाँ पे मैं डेटाबेस का लाइक कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ। ओके, सो वो हमें देखना है, बट अगेन लाइक वी रिक्वायर्ड सम लाइक द स्टेप्स। बट जो ADO.NET वाला कॉन्सेप्ट से, जो ADO.NEट भी लाइक आपको डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है, इसके पहले लाइक दूसरा एक कॉन्सेप्ट आता था जिसके अंदर भी डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करते थे, दैट इज ADO. So what is the difference between the like the ADO and ADO.NET? So basically when we'll come to like the comparison of the both, that is the ADO and ADO.NET, so both are the basically used for the configuration of your database connections with your backend code implementations. But again, if you talk about like the ADO na, so ADO it is called as the connection oriented. It is connection oriented. But if you talk about the ADO.NET na, so it is connectionless. Okay, so why we are saying the connectionless or connection oriented? So like connection oriented means what, like the without connections the ADO won't be work for your any backend application. But in the ADO.NET process it doesn't require any connections. If you once like only you pass like for the connections at least for one time na, so then only like you can go with directly the database connections to like work with that. बट अगेन जो ADO के अंदर प्रोसेस है, ADO में कैसे चाहिए आपका, एवरी टाइम इट विल चेकिंग फॉर योर कनेक्शंस, इफ द योर कनेक्शन इज एक्टिव देन ओनली यू कैन गो विद दिस. Active means what, like I will show you now like the in the backend application when we will create the one application in the C sharp. So in that project like first we need to configure our database. Okay, so when we are going to configure our database na, so that time like we required one thing कि this DB, like how the DB is going to connect with our the C sharp application now. Okay, so for that like we are using the like the data sources na. So in the data sources like we will use like the server to connect this like services, and with the help of the services we can access this database in the like the C sharp application. Okay, so we'll see that again, like we'll see like in the C sharp application like we will get like one the server explorer. Server explorer. In the server explorer like what we will do, like we will just like connect our database, whichever the database we want na, so that database like will connect here only in the server explorer. but उसमें भी कैसे रहता है, जब भी आप कनेक्शंस करते हैं यहाँ पे आपका कनेक्शन ऐड हो जाता है,
जो कोई भी आपको कनेक्शन करना है वो कनेक्शन आपका ऐड हो जाता है। अगेन लाइक दी, अगर मैं एडीओ के अंदर प्रोसेस करता हूँ तो एडीओ विल चेक फॉर दिस कनेक्शन। अगर एक कनेक्शन आपका एक्टिव है कि डीएक्टिव है ये चेक करेगा। अगर एक्टिव है तो ये एडीओ वाला जो कॉन्सेप्ट है आपके इसके साथ डेटाबेस के लिए वर्क करेगा, अदरवाइज ये आपको वर्क करने देगा नहीं। बट इन केस ऑफ दी लाइक एडीओ.नेट यहाँ पे कनेक्शन हो या ना हो इससे कुछ जरूरत ही नहीं है, इट डजेंट मैटर विद दिस। ठीक है, तो मोस्टली ज्यादा जो सबसे ज्यादा हम लोग प्रीफर करें तो क्या प्रीफर करना चाहिए, सो दैट इज दी एडीओ.नेट। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाइज जो लाइक अपडेट्स है वो अपडेट्स लाइक दैट मोस्टली वर्किंग विद लाइक द एडीओ.नेट ओनली, सो नो वन इज रिफरिंग नाउ द एडीओ। See, because every time we are not going to check that like the connection setup ना, कि like मेरा connection active है कि deactive है, and according to that like we need to work with the connections। ठीक है, बट जो एडीओ.नेट है यहाँ पे कोई कनेक्शन की जरूरत नहीं, इसके लिए इसे बोला मैंने कनेक्शन लेस। No need to make any connection into this. So without any connection also like we can use the database services into our backend application. So that is the main common difference between like the EDO and ADO.NET. First I'll show you like where we can check this like connection is active or like deactive. Okay. So see like we'll see the implementation here. Yes, so first here see, it is our like the backend applications where we have deployed some like projects in the like the C sharp. So the maximum projects like we have did here only in this solution explorer. But जब भी हमें कुछ database configurations करना रहेगा तो हमें कहाँ पे जाना रहेगा, देखो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप आते हो यहाँ पे फाइल्स के अंदर एडिट के बाजू में आपको व्यू करके मिलेगा, व्यू के अंदर सेक्शन में अगर आप आओगे तो यहाँ पे मिलेगा, देखो आपको दैट इज अ सर्वर एक्सप्लोर। ये देखिए ये जो सर्वर एक्सप्लोर है ये इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, जहां पे डेटाबेस कनेक्शंस हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा इसके हेल्प से। तो जैसे आप सर्वर एक्सप्लोर के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे तो देखो ये सर्वर एक्सप्लोर आपका ओपन हो जाता है, जो डेटा कनेक्शंस करके शो कर रहा है। यहाँ पे डेटा कनेक्शंस में कुछ कनेक्शन दिखा रहे हैं, बट इट इज माई लाइक द ओल्डेस्ट कनेक्शंस ओनली, सो आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस वन। और यहाँ पे एक चीज देख सकते हो, यहाँ पे देखो रॉन्ग मार्क दिख रहा है, यहाँ पे रेड कलर का लाइक जो साइन दिख रहा है। सो इट इज अबाउट व्हाट लाइक, इट इज अबाउट व्हाट लाइक द कनेक्शन इज यू आर नाउ डीएक्टिव। जैसे आपका कनेक्शन एक्टिव हो जाता है तो यहाँ पे ग्रीन वाला सिग्नल शो करता है। सो एक्चुअली जो एडीओ की बात कर रहा हूं मैं, तो एडीओ कहाँ पे और किसके साथ काम करता है, अगर आपका कनेक्शन यहाँ पे क्लोज रहेगा तो यहाँ पे एडीओ आपका वर्क नहीं करेगा। बट एडीओ.नेट डजंट मैटर विद लाइक इट डजंट माइंड विद दिस कनेक्शन, आपका कनेक्शन है कि नहीं है वो भी इवन वो चेक नहीं करेगा। सो विदाउट एनी कनेक्शन लेस ऑल्सो लाइक इट विल वर्क फॉर लाइक ऑल द थिंग्स जो एडीओ.नेट है। So how to add this like connections here, like how to configure this server first of all. So first we'll see like the main steps, like where we are configuring our SQL, we are connecting that SQL data source with the C sharp now. Okay, how to do this? Again, like I will show like here first we need to come into. So this is my basically SQL and in the like previous session also हम like हम इसके ऊपर बात कर रहे थे, जो हमारा फुल स्टैक करके हम लोगों ने यहाँ पे डेटाबेस बनाया था, इसके अंदर हम लोग डिस्कशंस करना था। तो ये फुल स्टैक वाला डेटाबेस है, तो यही डेटाबेस को मैं क्या कर लेता हूँ, कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ ये बैकएंड वाले एप्लीकेशन में। ठीक है, बट इसका स्टेप्स क्या रहेगा, तो स्टेप्स हमें देखना पड़ेगा इसके अंदर कि क्या स्टेप्स हम लोग इसके अंदर अप्लाई करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो मेरा डेटा कनेक्शन तो लाइक ओपन हो चुका है। सो हमें करना क्या पड़ेगा, देखो यहाँ पे so first like we'll right click on this and here we'll get the option to like add the connection. So once we click on it, like after that like it will gives me the options to add the like the server here. तो सर्वर नेम यहाँ पे पूछेगा हमें, लाइक हमारे पास अभी कोई सर्वर्स नहीं है, बट तो हमें क्या करेंगे, ये जो सर्वर हम लोगों ने कनेक्ट किया ना एसक्यूएल में, यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे भी मिलेगा ये ये सर्वर का नाम देखो यहाँ पे ये, तो ये भी आप नाम ले सकते हो। अदरवाइज जो फाइल में अगर आप आओगे तो यहाँ पे देखो कनेक्शन ऑब्जेक्ट एक्सप्लोर करके है, जस्ट क्लिक ऑन दिस। तो ये देखो ये वाला मेरा सर्वर है। तो आपको करना है क्या, ये सर्वर को कॉपी करना है यहाँ से। ठीक है, अब इसको कैंसिल आप कर सकते हो बिकॉज ऑलरेडी ये कनेक्टेड है। और यहाँ पे अभी लेके आता हूँ मैं, ये देखो जो सर्वर का नाम यहाँ पे पूछ रहा है मुझे, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सर्वर का नाम यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। जो सर्वर का नाम मैंने वहां से कॉपी किया था तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखो लाइक डेटाबेस का नाम अभी एक्टिवेट हो गया। देखो अगर ये सर्वर का नाम अगर मैं यहाँ पे नहीं दूं
तो यहाँ पे होगा क्या, लाइक देखो ये डेटाबेस का नाम अभी डिसेबल वे में दिखा रहे हैं। यहाँ पे कोई भी डेटाबेस सिलेक्ट करने के लिए मुझे ऑप्शन नहीं मिलेगा। बट वंस आई लाइक गेट द लाइक द सर्वर नेम हियर ना, देन ओनली लाइक दी डेटाबेस नेम विल गेट लाइक एक्टिव ओनली हियर. So just click on this like the cursor, the drop down cursor. So we can select over the database. See, this is my the database now, which we are going to connect over the full stack. So I'll select this database. ठीक है, ये वाला डेटाबेस जो एसक्यूएल में है, जो लाइक हम लोग कनेक्ट करने जा रहे हैं. तो देखो डेटा सोर्स या डेटा प्रोवाइडर हम लोग जो यूज करेंगे कौन सा है हमारा, जी माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, जो एमएस एसक्यूएल का डेटा सोर्स हम लोग अभी यूज कर रहे हैं. ठीक है, इसके अंदर और भी ऑप्शन है जो डेटा सोर्सेस आप यूज कर सकते हो, जैसे ओएलडीबी वगैरह है, बट वो मोस्टली हम लोग यूज नहीं करेंगे. डॉटनेट के लिए सबसे बेटर एंड कंपेटेबल होता है ये वाला डेटा सोर्स. ठीक है, एंड देन डेटाबेस वगैरह सेलेक्ट किया, जो सर्वर का नाम सेलेक्ट किया हम लोगों ने. यहाँ पे ऑथेंटिकेशंस में डोंट यूज द एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन बिकॉज वी आर यूजिंग द विंडो ऑथेंटिकेशन ओनली. whatever the like server name is given, based on that like we will test our connection. Just click on the test connection, so it will say the test connection success. इसका मतलब कनेक्शन प्रॉपर हो रहा है आपका. एंड इसके बाद जस्ट लाइक क्लिक ऑन दी ओके. सो देखो जैसे क्लिक ओके क्लिक करोगा तो वैसे देखो एक कनेक्शन मेरा ऐड हो चुका है. यहाँ पे डेटाबेस का नाम भी यही शो कर रहा है, फुल स्टैक DBO. एंड हियर यू कैन सी इट शोइंग दिस लाइक सम सिग्नल ना, एंड हियर इट इज शोइंग द लाइक द ग्रीन द रेड सिग्नल. तो ये देखो यहाँ पे ये जो सिग्नल्स आपको शो कर रहा है, ये वाला ये जो ग्रीन सिग्नल्स आपको ये शो कर रहा है, तो ग्रीन सिग्नल्स का मतलब क्या होता है, ये भी डेटाबेस आपका कनेक्ट हो चुका है, कनेक्शन अभी आपका एक्टिव हो चुका है. और ये जो सिग्नल्स आपको दिख रहे रेड वाले, इसका मतलब क्या है, आपका कनेक्शन डीएक्टिव है. ठीक है, इसका मतलब वो कनेक्शन आपका एक्टिव नहीं है. तो एडीओ क्या बोलता है, जब भी आपका कनेक्शन रहेगा ना तभी जाके एडीओ यहाँ पे काम करेगा. बट अगर कोई भी कनेक्शन अगर ये डीएक्टिव रहेगा तो लाइक एडीओ आपका वर्क नहीं करेगा. बट इन द एडीओ डॉट नेट जो सेकंड वाला कॉन्सेप्ट है आपका एडीओ डॉट नेट वाला, सो एडीओ डॉट नेट इट विल वर्क विद लाइक बोथ द कॉन्सेप्ट्स. लाइक इफ अगर कुछ कनेक्शन है नहीं भी है तो भी ये वर्क करना चाहिए. सो ये मेन बेस केस रहेगा इसके अंदर. सो देख लेते हैं हम लोग अभी आगे के लिए क्या करेंगे हम लोग. ये डेटाबेस तो मैंने डेटा सोर्स तो कनेक्ट कर लिया अभी यहाँ पे C# के साथ बैकएंड कोड के लिए. बट अगेन मुझे जो ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म करने, तो क्या क्या ऑपरेशन चाहिए, क्या क्या डेटाबेस कनेक्शन स्टेप चाहिए. सो फर्स्ट दैट वी विल डिस्कस एंड देन अगेन लाइक वी विल कम टू दिस एप्लीकेशंस पार्ट वेयर वी विल गोइंग टू इम्प्लीमेंट द ऑल द थिंग्स. ठीक है, सो नाउ जस्ट कम टू द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट हियर. ठीक है, सो लाइक आई होप लाइक सबको समझा रहेगा कनेक्शन एक्टिव और डीएक्टिव कब होता है. तो जब लाइक आपको रेड वाला सिग्नल्स मिलेगा, इसका मतलब क्या होगा, आपका कनेक्शन डीएक्टिवेट हो जाएगा. और एक्टिव का मतलब क्या होगा, वो ग्रीन वाला सिग्नल्स वहां पे आपको ये करेगा, शो करेगा. तो अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ कनेक्शन स्टेप्स required steps to connect DB with C#. तो C# के साथ जो डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लगेंगे देखो. तो फर्स्ट स्टेप तो हम लोगों ने डेटा सोर्स कनेक्ट कर लिया वहां पे. इसके बाद अभी मैं फर्स्ट स्टेप पे आता हूँ. देखो यहाँ पे पहले तो कनेक्शन कैसे करेंगे, कौन सा डेटाबेस में से कौन सा टेबल में ले रहा हो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग. तो उसके लिए देखो सबसे इंपॉर्टेंट लाइक फर्स्ट स्टेप्स रहेगा हमारा, दैट इज द एसक्यूएल कनेक्शन क्लास. देखो कुछ क्लासेस प्रोवाइड करके दिए है लाइक डॉटनेट्स के अंदर हमें एडीओ डॉटनेट ने. तो कौन से क्लासेस है वो भी हम लोग पहले डिस्कस करेंगे एंड देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं. जैसे कि देखो लाइक हमें एक ये वाला क्लास यूज होने वाला है अभी, एसक्यूएल कनेक्शन. जस्ट सेकेंड. सो हम लोग क्या करेंगे, पहले क्लास डिस्कस कर लेते हैं. सो प्रोवाइडर क्लासेस. ठीक है, यहाँ पे देख लेते कौन से क्लासेस हमें डॉटनेट ने एडीओ डॉटनेट ने प्रोवाइड करके रखे हैं. तो फर्स्ट क्लास इसने दिया है एसक्यूएल कनेक्शन. सेकेंड क्लास है हमारा एसक्यूएल कमांड. थर्ड है हमारा एसक्यूएल डेटा रीडर. ठीक है, और भी आते हैं इसके अंदर लाइक देखो यहाँ पे आपको मिलेगा एसक्यूएल डेटा एडाप्टर. ठीक है, बट राइट नाउ वी विल नॉट यूज दिस लाइक एसक्यूएल डेटा एडाप्टर. लाइक जो जब भी हम लोग वेब एप्लीकेशंस में काम करेंगे, दैट ऑन दैट टाइम ओनली लाइक वी विल यूज दिस एसक्यूएल डेटा एडाप्टर. बट नाउ इन दिस केस लाइक वी विल यूज दिस थ्री क्लासेस जो इनकी जरूरत पड़ेगी हमें.
सो एसक्यूएल कनेक्शन का काम क्या रहेगा, इट विल कॉन्फ़िगर दी कनेक्शन ठीक है। तो कनेक्शन कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो कनेक्शन मतलब क्या है कि कनेक्शन के अंदर पहले तो हमें यहाँ पे एक चीज लोड करनी पड़ती है, उसको हम लोग बोलते हैं इट्स अ कनेक्शन स्ट्रिंग। सो ये कनेक्शन स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, देखो कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर कुछ पैरामीटर सेट करता है ये। एक सपोज एक स्पेसिफिक सी स्ट्रिंग प्रोवाइड करके देगा, उस स्ट्रिंग के अंदर कनेक्शंस के कुछ पैरामीटर्स रहेंगे। तो क्या क्या कनेक्शंस के पैरामीटर पास करके दे दे, जहाँ पे आपका डीबी रहेगा कि कौन सा डेटाबेस आप यूज कर रहे हो, कौन सा सर्वर आप यूज कर रहे हो, तो ये सारी चीजें रहेगी। जो इंटीग्रेशन सिक्योरिटी वगैरह रहेगा, वो सारी चीजें वो कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर आपको प्रोवाइड करके देगा। तो ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग आपका बनेगा, वो कनेक्शन स्ट्रिंग आपको ये एसक्यूएल कनेक्शंस को देना पड़ेगा टू कॉन्फ़िगर योर डेटाबेस। और जैसे आप डेटाबेस को इसको एसक्यूएल कनेक्शन को दे दोगे, तो वैसे ही क्या करेगा, आपका डेटाबेस कॉन्फ़िगर कर देगा यहाँ पे। ठीक है। सो इट इज अबाउट व्हाट लाइक द एसक्यूएल कनेक्शन क्लास। Then come to the SQL command. So what is the basically use of the SQL command class? So basically the use of the SQL command is what, to execute to pass the SQL queries. ठीक है। तो इसका यूज क्या है, देखो एसक्यूएल कमांड का, एसक्यूएल कमांड की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, एसक्यूएल क्वेरीज पास कर सकते हैं कोई भी। जैसे एसक्यूएल क्वेरीज में हमें पता है यू कैन पास डीएमएल एज वेल एज द डीक्यूएल। तो दोनों भी क्वेरीज ये देखो ये अलाउ करता है आपको एसक्यूएल कमांड के अंदर। तो एसक्यूएल कमांड को यूज करके मैं कोई भी टाइप की क्वेरी यहाँ पे पास कर सकता हूँ, ताकि वो डीएमएल की हो या वो डीक्यूएल की हो, फिर वो इंसर्ट अपडेट डिलीट हो या तो लाइक डीक्यूएल, उसमें सेलेक्ट क्वेरी आप यूज कर सकते हो। तो कोई भी टाइप की क्वेरी अगर आपको पास करने से, उसके लिए वी रिक्वायर द एसक्यूएल कमांड क्लास to check your SQL queries, and after that we need to check with like the SQL data reader class. So what is the use of the SQL data reader class? So इसका यूज क्या होता है और ये क्या काम करता है यहाँ पे। The SQL data reader class, it will read all the records from entity। तो जो टेबल आप प्रोवाइड करके दोगे, वो टेबल के अंदर से वो क्या करेगा, आपको डेटा फेच करके दे देगा कि क्या क्या डेटा आपको रीड करना है, वो सारे डेटा आपको यहाँ पे रीड आउट करके देगा। सो वी विल नॉट डिस्कस अबाउट लाइक दिस थिंग्स, वी विल कम विद दिस, बट अगेन लाइक इन द लाइक वेब एप्लीकेशन ओनली। तो अभी फिलहाल के लिए हमें इसकी जरूरत नहीं है, बट अभी ये तीन चीज की हमें यहाँ पे फिलहाल के लिए जरूरत पड़ेगी। एसक्यूएल कनेक्शन लगेगा, एसक्यूएल कमांड लगेगा और एसक्यूएल डेटा रीडर लगेगा। ठीक है। सो ये रहेगा, देखो लाइक पहले तो एसक्यूएल कनेक्शन लगेगा, विदाउट ऑफ दैट लाइक आप कुछ कर ही नहीं सकते इसके अंदर। ठीक है, बिकॉज कनेक्शन ही नहीं है, उसको पता ही नहीं कि कौन सा डेटाबेस है, कौन सा टेबल आप कनेक्ट कर रहे हो, तब तक आगे का कुछ भी प्रोसेस यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। सेकेंडली एसक्यूएल कमांड आपको क्या करता है, कुछ भी अगर क्वेरी पास करने, बिकॉज एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें परफॉर्म क्या करना है उसके अंदर। मुझे डेटा ऑपरेशंस में इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, कुछ सेलेक्ट करना है, फेच करना है। सो दैट ऑल द ऑपरेशंस आर डिपेंड्स ऑन व्हाट लाइक डिपेंड्स ऑन योर क्वेरीज ओनली ना। सो दैट क्वेरीज आर डिफाइंड बाय यूजिंग द एसक्यूएल कमांड्स ओनली। तो एसक्यूएल कमांड की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, वो क्वेरीज वगैरह पास करेंगे और क्वेरीज को वहां से लाइक क्वेरीज एग्जीक्यूट करके नहीं देगा। एसक्यूएल कमांड का काम क्या है, सिर्फ क्वेरी पास करने के लिए आपको हेल्प आउट करेगा ये। बट अगर उसको एग्जीक्यूट करना है, तो एग्जीक्यूट करने के लिए हमें और भी दूसरे कुछ क्लासेस की जरूरत पड़ेगी, दूसरे कुछ मेथड्स से। वो मेथड्स की हेल्प से मेथड की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं टू एग्जीक्यूट दैट क्वेरीज। देखो यहाँ पे मैंने जैसे बोला कि एसक्यूएल कमांड क्या करे, डीएमएल और डीक्यूएल के क्वेरीज आपको पास करके दे रहा है, बट उसका जो एग्जीक्यूशन है, वो एग्जीक्यूशन अब कौन से वे से और कैसे करना है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे और क्या वे से करना रहता है वो। देन यहाँ पे रहेगा, देखो एसक्यूएल डेटा रीडर, जो मैंने बोला कि एसक्यूएल डेटा रीडर आपको कहाँ पे काम आएगा, जब आप कहाँ पे आप सिलेक्ट क्वेरी की हेल्प लोगे। सिलेक्ट क्वेरी क्या करते हैं, जहाँ पे कुछ डेटा फेचिंग का काम करते हैं, तो डेटा फेचिंग के टाइम पे आपको ये क्या करेगा, हेल्प करेगा टू फेच योर डेटा। Okay, so that three classes are there, that is called as like the provider classes, which is provided by the ADO.NET only. It is the ADO.NET data provider classes. ठीक है। और इसके बाद हम लोग आते हैं कुछ मेथड्स। इसके अंदर क्या और मेथड्स इसने दिया है, देखो जैसे मैंने बोला कि एग्जीक्यूशंस के लिए कुछ अगर मुझे मेथड्स चाहिए, तो हम लोग इसके अंदर कुछ कंपैरिजन देखेंगे। लाइक देखो मेथड्स का यहाँ पे कुछ मेथड मिलेगा आपको, देखो एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी वर्सेस
एग्जीक्यूट रीडर वर्सेस एग्जीक्यूट स्केलर। ठीक है, सो ये तीन एक्चुअली मेथड है, और लाइक वी कैन डिफाइन आल्सो लाइक द क्लास, जो क्लास के थ्रू हमें ये मेथड मिल रहे हैं। तो बेसिकली इनका यूज क्या है कि ये करते क्या, यहाँ पे अभी वो देखना है हमें। दैट इज लाइक द एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, एग्जीक्यूट रीडर एंड एग्जीक्यूट स्केलर। तो इनका मेन बेसिक पर्पस क्या और कहाँ पे और क्यों यूज करना है इसे। तो देखो जो एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी वाला ये जो पार्ट है आपका, तो ये क्या करता है, इट रिटर्न दी इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू इन द सेंस क्या करना रहता है कि लाइक सपोज कर लो कि आप अगर कोई भी इंसर्ट अपडेट डिलीट के साथ कोई भी अगर डीएमएल के कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, सो बेसिकली इसका जो मेन पर्पस होता है तो वर्क विद लाइक डीएमएल क्वेरीज ओनली, और वी कैन सी द डीएमएल ऑपरेशंस। तो जहां जहां पे आपके डीएमएल ऑपरेशंस आएंगे वहां पे आपको क्या यूज करना है, ये द एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी डीएमएल्स के लिए। ठीक है, जहां पे इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट वाले फंक्शनलिटी की काम आएगी हमें। ठीक है, तो ये तीनों भी फंक्शनलिटी, ये तीनों भी क्वेरीज अगर आपको पास करना है तो यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी दैट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, जो क्या करता है इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। मतलब आपका जो क्वेरीज है वो एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं, वहां पे रिकॉर्ड आपका इंसर्ट हो रहा है कि नहीं, तो रिकॉर्ड इंसर्ट होने के बाद कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स वहां पे क्या हो रहा है, अफेक्ट कर रहे हैं, तो वो फाइंड आउट करने का काम कौन करेगा, ये आपका एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। अगेन इफ यू कम टू लाइक द एग्जीक्यूट रीडर, तो एग्जीक्यूट रीडर ये क्या करता है, यहाँ पे देखो। So basically it will not return any integer value, it will return the number of objects, return the number of rows we can say। ठीक है, जब भी हम लोग टेबल के ऊपर जब सिलेक्ट वाला क्वेरी फायर कर लेते हैं, तो सिलेक्ट वाला क्वेरी मतलब यहाँ पे आप डीक्यूएल की क्वेरीज अप्लाई कर सकते हो, डीक्यूएल ऑपरेशंस के लिए बेसिकली आपको काम आता है। ठीक है, डोंट यूज एग्जीक्यूट रीडर फॉर लाइक योर डीएमएल ऑपरेशंस। तो डीएमएल ऑपरेशंस के लिए काम नहीं करेगा, जहां जहां पे आप डीक्यूएल के क्वेरी या डीक्यूएल के ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, तो ये डीक्यूएल ऑपरेशंस के लिए आपको जरूरत पड़ेगी ये एग्जीक्यूट रीडर की। जहां पे एग्जीक्यूट रीडर की आपको जरूरत पड़ेगी, ये क्या करता है, इट विल रिटर्न द नंबर ऑफ रोज। तो जैसे आप एग्जीक्यूट रीडर को अप्लाई करोगे वैसे क्या करेगा, ये नंबर ऑफ रोज आपको वहां से सर्च करके दे देगा, जो नंबर ऑफ रोज आपको रिटर्न करने रहेंगे वहां पे। ठीक है, सो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को जो लाइक आपको रिटर्न करवाना है, वो रिकॉर्ड्स आप रिटर्न करवा सकते हो बाय यूजिंग दी एग्जीक्यूट रीडर। बट देन व्हाट अबाउट दी एग्जीक्यूट स्केलर देन। जैसे देखो ये भी डीक्यूएल ऑपरेशंस के ऊपर काम करता है, और ये भी डीक्यूएल के लिए स्पेशली होता है, डीएमएल के लिए ये भी अप्लाई नहीं होगा। कोई भी डीक्यूएल ऑपरेशंस अगर आपको परफॉर्म करना है तो आपको एग्जीक्यूट स्केलर की जरूरत पड़ेगी। तो एग्जीक्यूट स्केलर करता क्या है, इट विल नॉट रिटर्न नंबर ऑफ रोज, इट विल रिटर्न so it will return only what, like it will return only the first one record only। फर्स्ट मतलब या टॉप वन रिकॉर्ड बोल सकता हो, तो टॉप पे जो एक सिंगल रिकॉर्ड मिलता है उसको रिटर्न करने का काम करता है। इट विल रिटर्न टॉप फर्स्ट रिकॉर्ड्स। ओके, सो टॉप वन वाला कोई भी एक रिकॉर्ड है उसको फेच करने का काम कौन करेगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट स्केलर। तो एग्जीक्यूट स्केलर क्या करेगा, सिर्फ एट टाइम एक सिंगल रिकॉर्ड आपको रिटर्न करके दे सकता है। अगर आप एग्जीक्यूट रीडर यूज करोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ एंट्रीज एंड नंबर ऑफ रोज यहाँ पे रिटर्न हो सकते हैं। ठीक है, और वो भी एक डीक्यूएल ऑपरेशन के साथ, जहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी आपका काम आएगा। यहाँ पे भी आपको सिलेक्ट क्वेरी के साथ इसको यूज करना पड़ेगा। डोंट यूज इंसर्ट अपडेट डिलीट इन द लाइक एग्जीक्यूट स्केलर एंड एग्जीक्यूट रीडर। तो दोनों का मेन पर्पस है फॉर द लाइक डीक्यूएल ऑपरेशंस ओनली, वेयर वी कैन यूज लाइक द सिलेक्ट क्वेरी। But again, when you come to like the DML operations, so in that like you can pass this execute non query to return the integer value। मतलब इसके अंदर आपको क्या रिटर्न करना है वो डिपेंड्स करेगा, लाइक क्या क्या चीजें रिटर्न करना है, क्या क्या चीजें अप्लाई करने हैं वहां पे, वो सब डिपेंड करेगा आपके क्वेरीज के बेसिस पे यहाँ पे। Okay, so it is basically difference between the execute non-query, execute reader and execute scalar। तो execute non-query it will return the integer value जहाँ पे आप DML ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। एग्जीक्यूट रीडर जो होता है, एग्जीक्यूट रीडर क्या करेगा, नंबर ऑफ रोज को आपको एट ए टाइम लाइक फेच करके दे देगा, एंड नंबर ऑफ रोज जितने भी रिकॉर्ड्स रहेंगे उतने फेच करके दे देगा। और एग्जीक्यूट स्केलर क्या करेगा, एट टाइम सिर्फ एक सिंगल रिकॉर्ड को आपको फेच करके देगा, जो टॉप वन वाला रिकॉर्ड रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली अभी अगर देख रहे हैं यहाँ पे ये कैसे काम करेंगे, तो हमें पहले देखना पड़ेगा ये कनेक्शन स्टेप्स।
जो नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक 3 to 4 स्टेप्स हमें दिया है इसने प्रोवाइड करके एडियो डॉट नेट ने, उस स्टेप्स के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटाबेस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, एक डेटाबेस की जो हर एक ऑपरेशंस को हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं. सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट विल बी रिक्वायर्ड टू कनेक्ट अवर डेटाबेस विद लाइक द सी शार्प इन द बैक एंड एप्लीकेशन. ओके, सो दैट विल सी. सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहले तो एक नेक्स्ट स्टेप्स टू कनेक्ट डीबी. ठीक है, डीबी कनेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या क्या स्टेप्स हो गए देखो. लाइक यहाँ पे फर्स्ट स्टेप्स रहेगा हमारा लोड द कनेक्शन. ठीक है, तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, कनेक्शन लोड करना पड़ेगा. तो विदाउट कनेक्शन लोडिंग आप आगे का कुछ भी प्रोसेस यहाँ पे नहीं कर सकते. तो पहले तो आपको चेक करना है कि आपका कनेक्शन लोड हुआ है कि नहीं प्रॉपर्ली, तब जाके आप आगे उसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हो. तो पहले आपको क्या करना है, कनेक्शन लोड करना है. तो कनेक्शन लोड करने के लिए वी विल यूज बेसिकली दी एसक्यूएल कनेक्शन क्लास. तो एसक्यूएल कनेक्शन क्लास हमें हेल्प करेगा टू लोड अवर डेटाबेस कनेक्शन. ओके, और इसका हमें ऑब्जेक्ट डिफाइन करना पड़ेगा. लेट्स से द कनेक्शन इज इक्वल्स टू, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें पता है न्यू कीवर्ड यूज करेंगे एंड देन यहाँ पे पास करेंगे एसक्यूएल कनेक्शन. और ये देखो, ये जो पैरेंथेसिस आपको दिख रहा है, पैरेंथेसिस ब्रैकेट मतलब ये मेन आपका एसक्यूएल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन रहा है, और ये आपका रेफरेंस है कनेक्शन जिसके अंदर मैं इसको स्टोर कर रहा हूँ कनेक्शन वाला ऑब्जेक्ट्स. ओके, तो ये जो पैरेंथेसिस रहेगा, ये पैरेंथेसिस के अंदर आपको क्या स्टोर करना है, इसके अंदर रहेगा आपका कनेक्शन स्ट्रिंग. तो कनेक्शन स्ट्रिंग मतलब मैंने क्या बोला आपको, कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर क्या होगा, तो डेटाबेस कनेक्शंस के लिए आपको जो मेन स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर क्या क्या पैरामीटर्स हो गए, वहां पे डेटाबेस रहेगा, आपका सर्वर रहेगा, जो भी चीजें रहेगी वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पास करेंगे. सो दैट इज बेसिकली द कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ योर कनेक्शन स्ट्रिंग इन द एसक्यूएल कनेक्शन क्लास. ओके, सो ये हमारा फर्स्ट स्टेप्स रहेगा. बट अगेन सी लाइक व्हेन यू विल डिफाइन द लाइक ऑब्जेक्ट फॉर दिस लाइक क्लास ना, जो एसक्यूएल कनेक्शन के लिए क्लास बना दिया, बट अगेन इट वोंट बी लाइक वर्क डायरेक्ट प्रॉपर्ली ओवर देयर. सो ये प्रॉपर वर्क कैसे करने स्टार्ट कर देगा फिर, तो इसको वर्क करने के लिए हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरत किसकी पड़ेगी, देखो ये कनेक्शन जब तक आपका इनेबल नहीं हो रहा, एक्टिवेट नहीं हो रहा, तब तक आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं. तो हाउ टू स्टार्ट दिस कनेक्शन, सो बाय यूजिंग दिस कनेक्शन ऑब्जेक्ट द कनेक्शन dot, we will use one the method, or like we can say the property that is the open. So the this is the steps basically used to start the connection. ठीक है, तो इसका यूज क्या है, तो कनेक्शन स्टार्ट करने के लिए. और जैसे लाइक ओपन वाला मेथड आप पास करोगे कनेक्शंस के लिए, तो वैसे आपका कनेक्शन ही एक्टिव कर देगा. और जैसे एक्टिव हो गया कनेक्शन, उसके बाद लाइक आप कोई भी लाइक देन यू विल बी एबल टू लाइक परफॉर्म एनी ऑपरेशंस इनटू द डेटाबेस. इफ सम टाइम लाइक इफ यू फॉरगॉट टू लाइक द ओपन योर डेटाबेस कनेक्शन, देन अगर डेटाबेस कनेक्शन जब तक आपका ओपन नहीं हुआ तब तक आपको ये कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए अलाउ नहीं करेगा. If you try to perform any operations now, so that time it will show the error only. Why? Because your database, the connection is not active still. Okay, so जब तक connections active नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते. Active in the sense connection को start करने. It means what, like now I'm ready to use this connection. If I'm not starting this, like if I'm not using this open wala method na, so it means what, like we are not ready to use this connection na. See, every time when we are starting this connection na, so at the last end of the steps, like we require to close this connection. ठीक है, वो भी नेसेसरी नहीं है कि जब आप कनेक्शन को क्लोज करने जाते हो, सपोज कर लो कि मुझे भी आगे इन केस के लिए मुझे अगर आगे कुछ यूज नहीं करना है कनेक्शन का, तो व्हाट आई विल डू, आई जस्ट क्लोज द कनेक्शंस ना. मुझे अगर उसका कुछ भी यूज नहीं है तो, बट अगर कनेक्शन का यूज रहेगा, सो लाइक जस्ट लाइक वी ओपन दिस कनेक्शंस ओनली, डोंट क्लोज इट. Okay, so it is a basically start the connections for using the connection string inside this in the SQL connection. तो जब तक SQL कनेक्शन के अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग आपको नहीं मिलेगा तब तक इसका कनेक्शन कॉन्फ़िगर नहीं हो पाएगा. तो पूरा का पूरा जो एंटायर प्रोसेस है कनेक्शन कॉन्फ़िगर करने का, इसका पूरा डिपेंड किसके ऊपर करता है, ये कनेक्शन स्ट्रिंग के ऊपर. ओके, सो लाइक फ्रॉम वेयर वी कैन टेक द कनेक्शन स्ट्रिंग, दैट आल्सो लाइक आई विल शो यू हियर ओनली. लाइक वी आर कनेक्टेड दिस लाइक डेटा सोर्स ना, हियर आई शो यू दैट. यस, यहाँ पे देख सकते हो जो लाइक मैंने लेफ्ट साइड में दिखा आपको, यहाँ पे दिस इज माय कनेक्शंस ना, जो हम लोगों ने डेटा सोर्स अभी यहाँ पे प्रोवाइड किया था. ये देखो डेटा सोर्स प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पे ये जो एरो दिख रहा है आपको, ये एरो इसके ऊपर जब भी क्लिक करो तो आपको देखो आपके डेटाबेस के अंदर क्या क्या टेबल है दैट यू कैन सी इनसाइड इट.
टेबल के अंदर आओगे तो टेबल में देखो सारे सॉरी डेटा टेबल के अंदर सारे टेबल आपके दिख जाएगी, जितने भी टेबल्स आपने बनाए हुए हैं एसक्यूएल के अंदर। ठीक है, तो ये सारे टेबल तो दिख रहे हैं, बट मेरा जो कनेक्शन स्ट्रिंग की मैं जो बात कर रहा हूँ वो कनेक्शन स्ट्रिंग लाइक वेयर आई कैन फाइंड दैट लाइक कनेक्शन स्ट्रिंग। सो फॉर दैट केसेस लाइक वेयर वी विल लाइक सर्च इट। सो अगेन ये जो डेटाबेस दिख रहा है आपको, जिसके ऊपर जस्ट लाइक राइट क्लिक करना है, एंड इन द राइट क्लिक यू कैन सी वन प्रॉपर्टीज बार इज देयर इनसाइड इट, द वन ऑप्शन इज देयर दैट इज द प्रॉपर्टीज। जस्ट क्लिक ऑन दिस प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज क्लिक करने के बाद नाउ यू कैन सी इन द राइट साइड दैट इज द कनेक्शन स्ट्रिंग हियर। देखो ये अभी यहाँ पे हमारा मिलेगा, यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग जो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग। तो कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर क्या क्या चीजें दी है ये भी दिखाता हूं मैं आपको। ये देखो, अगर इसको मैं कॉपी कर लूं, कंट्रोल ए कर लेता हूं और इसको कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे इसे ले लेता हूं मैं नोटपैड के ऊपर, तो हम लोग उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बेसिकली उसके अंदर क्या क्या चीजें दी है इसने। ये देखिए, तो इसको मैंने कॉपी किया, तो कॉपी करने के बाद देखो क्या क्या चीजें इसके अंदर लिखी है इसने। एक तो डेटा सोर्स है, तो बेसिकली डेटा सोर्स मींस व्हाट, लाइक डेटा सोर्स मींस लाइक विच डेटा विच सर्वर लाइक यू आर कनेक्टिंग टू दिस लाइक डेटाबेस। तो ये मेरा सर्वर का नाम है, देखो लोकल डीबी जो मैंने यूज किया है मेस एसक्यूएल के अंदर। ठीक है, तो ये सर्वर का नाम है। सेकंड पैरामीटर इसने पास किया दैट इज इनिशियल कैटलॉग। इनिशियल कैटलॉग मींस व्हाट, इट इज योर डेटाबेस नेम। ठीक है, इनिशियल कैटलॉग मींस क्या होता है, यहाँ पे आपका डेटाबेस का नाम है, कौन सा डेटाबेस में कनेक्ट करने जा रहा हो, तो फुल स्टैक वाला डेटाबेस है। और इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी मतलब कुछ कनेक्शंस के अंदर कुछ सिक्योरिटीज रहते हैं, उसको लाइक आपको ट्रू सेट करना पड़ता है। तो आपको मैन्युअली कुछ भी चीज यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक सब सेट करके दिया है। वंस यू एक्टिवेट योर कनेक्शंस ना इन लाइक द सर्वर एक्सप्लोरर, देन ओनली लाइक यू कैन सी दिस लाइक द कनेक्शन स्ट्रिंग इनसाइड दिस। ठीक है, अदरवाइज अगर आपके पास कोई भी कनेक्शंस आपने एक्टिवेट नहीं किया, वहां पे सेटअप नहीं किया है, और अगर आप ट्राई करो कि मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए, लाइक यू वोंट बी एबल टू फाइंड आउट दैट लाइक कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, बिकॉज वो कनेक्शन स्ट्रिंग जो डिपेंड करता है वो आपका एक्टिव डेटा सोर्स के ऊपर रहता है। तो हर एक डेटा सोर्स का अलग अलग पार्ट बनेगा आपका, जैसे कि आपका सर्वर के ऊपर डिपेंड करता है और कौन सा लाइक डेटाबेस आप यूज कर रहे हो। ठीक है, तो ये 2 से 3 चीजें लाइक जो है वो ज्यादा मैटर करते हैं इसके अंदर। और भी लाइक इसके अंदर देखो, ऐसे इसने सिर्फ 2 से 3 चीजें यूज की है, बट हमें और भी चीजें इसके अंदर ऐड करनी पड़ेगी। और वो क्या है और क्यों उसके ऐड करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे जब भी हम लोग इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे तब। ओके, सो फर्स्ट हम लोग वहां पे देखेंगे कि क्या टाइप के एरर्स आते हैं और वो एरर्स का सॉल्यूशन क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, उसके सॉल्यूशन भी ऐड करेंगे। ठीक है, अभी भी मैं बता सकता हूँ, बट अभी आपको लाइक वो इतना लाइक समझ में नहीं आ पाएगा, बिकॉज उसका भी इसको यहाँ पे ऐड करके कुछ उसका कुछ यूज नहीं रहेगा, तो यहाँ पे ऐड करके अभी कुछ मतलब नहीं है, तो हम लोग उसको ऐड करेंगे। बट व्हेन जब भी उसका कुछ जरूरत रहेगी, जहाँ जहाँ पे लाइक जरूरत है वहां पे मैं क्या करूंगा, उसको ऐड करूंगा और तब जाके मैं उसको यूज भी करूंगा वहां पे। ठीक है, सो बेसिकली देखो ये भी मिल गया हमें, यहाँ पे अभी कनेक्शंस मिल गया, कनेक्शन स्ट्रिंग मिल गया। तो अगेन ये देखो कनेक्शन स्ट्रिंग मिलने के बाद लाइक देखो ऑलमोस्ट आपका काम यहाँ पे बन जाता है जो एसक्यूएल कनेक्शन को चाहिए। ठीक है, एसक्यूएल कनेक्शन को क्या चाहिए, उसको मेन कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशन चाहिए था, ये कनेक्शन स्ट्रिंग वाला, तो ये तो मैंने दे दिया यहाँ पे। सो इट वाज अबाउट लाइक द फर्स्ट स्टेप दैट इज द लोडिंग द कनेक्शन। तो मेरा कनेक्शन अभी यहाँ पे लोड हो चुका है, तो फर्स्ट वाला स्टेप मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जो मुझे कनेक्शन चाहिए था वो कनेक्शन स्ट्रिंग भी मुझे यहाँ पे मिल गया एसक्यूएल कनेक्शन के अंदर। नाउ जस्ट कम फॉर लाइक द सेकंड स्टेप्स। So what will the now second steps? So second steps क्या होगा, to pass the query, to pass SQL query। ठीक है, एसक्यूएल क्वेरी अगर पास करना है तो मैंने बताया था कि एसक्यूएल क्वेरी पास करने के लिए हमारे पास एक एसक्यूएल डेटा प्रोवाइडर दिया था उसने ADO.NET ने। तो कौन सा डेटा प्रोवाइडर हमें यहाँ पे यूज करना है, दैट इज दी एसक्यूएल कमांड। ठीक है, एसक्यूएल कमांड करके एक डेटा प्रोवाइडर है जो हमें इसके अंदर हेल्प करेगा, ये क्लास है एसक्यूएल कमांड। इसके लिए भी इसका क्या करना पड़ेगा, आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा एसक्यूएल कमांड का। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको सेम न्यू कीवर्ड की जरूरत पड़ेगी एंड सेम द क्लास का नाम, जो क्लास का ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो। बट अगेन यहाँ पे एसक्यूएल कमांड के अंदर वी नीड टू पास 2 पैरामीटर्स। So what parameters we required to pass inside the like the SQL command? Because SQL command क्या करता है, क्वेरी चेक करता है आपका, तो क्वेरी चेक करने के लिए आपके पास कुछ क्वेरी तो होना चाहिए यहाँ पे। तो आपको 2 पैरामीटर यहाँ पे क्या पास करने पड़ेंगे। फर्स्ट पैरामीटर तो आपका रहेगा यहाँ पे क्वेरी, कॉमा सेकंड पैरामीटर रहेगा आपका कनेक्शन। तो ये देखिए, ये जो कनेक्शन आ रहा है वो कनेक्शन कहाँ से ले रहा हूं मैं, यहाँ से।
ठीक है। तो ये वाला कनेक्शन देखो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, कनेक्शन ऑब्जेक्ट। बट व्हाट अबाउट दिस क्वेरी? तो यहाँ पे ये क्वेरी कौन सा रहेगा? ये आपका एसक्यूएल का क्वेरी है। सपोज कर लो आपको इंसर्ट का क्वेरी पास करना है, अपडेट का क्वेरी, या डीएमएल या डीक्यूएल कोई भी क्वेरी पास करना है, तो वो जो एसक्यूएल का क्वेरी आपको जरूरत है वो सब एसक्यूएल क्वेरी आपको इसके अंदर पास करना पड़ेगा, एसक्यूएल क्वेरी की जगह पे। ठीक है। ऑल्सो यू कैन यूज लाइक दिस काइंड ऑफ सी, यू कैन क्रिएट वन स्ट्रिंग एंड द स्ट्रिंग लाइक जस्ट पास योर क्वेरी एंड दैट स्ट्रिंग यू कैन पास हियर ओनली। ठीक है। सो क्वेरी, it's not my the variable, it's only the local variable only. So, okay, so like you can create any variable here that is instead of the query, but again इसके अंदर आप क्या पुट कर दो, that is very important. So ये query मतलब क्या रहेगा? तो SQL का query, जैसे मैंने बोला कि इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग में क्वेरी नाम का वेरिएबल बना दो और ये क्वेरी के अंदर स्ट्रिंग बना दो डबल कोट्स, और यहाँ पे आपका जो कोई भी क्वेरी आएगा ना, इंसर्ट अपडेट डिलीट, जो कोई भी क्वेरी पास करना है तो वो वाला पूरा क्वेरी आपको किसके अंदर पास करना रहेगा? ये वेरिएबल के अंदर। एंड देन यू नीड टू लोड दिस वेरिएबल इनसाइड दिस इन द एसक्यूएल कमांड. So that will be your first parameter, and the second parameter will be what, like why we require the second parameter, that is the connection. ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेरी से भी काम चल जाएगा ना, देन वाई वी टेकिंग द लाइक कनेक्शन पैरामीटर देन हियर, बिकॉज देखो जब भी कुछ क्वेरी पास करने जाओगे तो अगेन इट्स रिक्वायर्ड द डेटाबेस ना, और लाइक फ्रॉम विच सर्वर यू आर टेकिंग द डेटाबेस। ये कैसे चेक करेगा वहां पे कि कौन से सर्वर से आ रहा है, कौन से डेटाबेस से आ रहे हैं, या कौन सा टेबल आप यूज कर रहे हो? बिकॉज इन द एसक्यूएल क्वेरी आई विल प्रोवाइड लाइक सपोज लाइक आई एम राइटिंग वन बेसिक क्वेरी फॉर लाइक द सिलेक्ट वाला क्वेरी, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, अगर सपोज कर लो कि मैं कौन सा टेबल यूज कर रहा हूँ तो एम्प्लॉय, ये क्वेरी मैंने दे दिया इसको, ये क्वेरी यहाँ पे कहाँ पे पास किया? यहाँ पे। बट अगेन ये सर्च करेगा कि लाइक भाई एम्प्लॉय जो टेबल है, ये एम्प्लॉय टेबल कौन से डेटाबेस से ले रहा हूं मैं, कौन सा डेटाबेस, और वो डेटाबेस कौन से डेटा सोर्स से आ रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो किसके अंदर मैंने सेटअप करके रखा है? कनेक्शन के अंदर है। जो कनेक्शन के अंदर देखो कनेक्शन स्ट्रिंग हम लोगों ने सेटअप करके रखा है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग ने मुझे बता के रखा है कि यहाँ पे मेरा डेटा सोर्स ये है, कौन सा सर्वर यूज कर रहा हूँ, कौन सा डेटाबेस है, और उसके अंदर कौन से टेबल है। इफ सपोज इफ आई एम गिविंग द रॉन्ग नेम ना, सपोज जी मैंने यहाँ पे लिखा एम्प्लॉय, तो हमें पता है लाइक देखो हमारे पास कोई एम्प्लॉय नाम का कोई टेबल है ही नहीं, हम लोगों ने जो टेबल का नाम दिया वहां पे सिर्फ ईएमपी करके दिया है, करेक्ट। सो एम्प्लॉय नाम का टेबल नहीं रहेगा तो इट विल शो द एरर कि देयर इज नो एनी एम्प्लॉय एंटिटी इनसाइड दिस डेटाबेस। क्यों? बिकॉज ये कनेक्शन चेक करने जा रहा है ना, ये बोला कनेक्शन के अंदर, तो आपने बोला है कि आपको फुल स्टैक वाला डेटाबेस कनेक्ट करना है, तो डेटाबेस के अंदर तो ये वाला कोई टेबल है ही नहीं वहां पे, एम्प्लॉय वाला टेबल। तो वहां पे हमें पता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही टेबल है, वो कौन सा? ईएमपी टेबल है। देन ओनली लाइक इट विल फाइंड आउट। तो इसके लिए देखो कनेक्शन बहुत जरूरी है कि जो कोई भी क्वेरी आप पास करोगे एसक्यूएल क्वेरी, वो एसक्यूएल क्वेरी जाके वो इसके अंदर चेक करना पड़ता है। ऐसे जो डेटा सोर्स या जो कोई भी डेटाबेस आपने यूज किया उसके थ्रू चेक करेगा, एंड अकॉर्डिंग टू दैट ओनली लाइक इट विल वर्क ओवर देयर। ठीक है। सो इट इज लाइक द बेसिक द सेकंड स्टेप्स ऑफ योर द डेटाबेस, जहाँ पे कनेक्शन कॉन्फ़िगर करना है। सो लाइक आई विल रिमूव दिस वन थिंग। ठीक है। सो आपको ये समझा रहेगा, देखो बेसिकली तो क्वेरी एंड कनेक्शन क्यों चाहिए। तो एसक्यूएल क्वेरी आपको जैसा चाहिए वो पास कर सकते हो यहाँ पे। देयर इज नो सच दी लिमिटेशंस और लाइक दी वी कैन से द रेस्ट्रिक्शन। आपको जो चाहे डीएमएल डीक्यूएल कोई भी क्वेरीज आप इसके अंदर पास कर सकते हो। बट अगेन फॉर लाइक द नेक्स्ट पार्ट, ये होने के बाद देखो इसका सिर्फ इसने सिर्फ क्वेरी पास किया, बट हाउ वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट इट। सो द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, लाइक हाउ टू एग्जीक्यूटिंग द क्वेरीज। तो क्वेरी जो आप लिख रहे हो उसको एग्जीक्यूट कैसे करोगे? अभी मैंने कनेक्शन के साथ चेक करना था, उसको चेक भी कर लिया, बट अभी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा? लाइक उसको ये करना है कि उसको एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं, वो कैसे चेक करेंगे? तो एग्जीक्यूट करने के लिए ये जो सीएमडी है आपका, तो सीएमडी के साथ यहाँ पे देखो हम लोग क्या लिखेंगे, सीएमडी डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। जो अभी इसके पहले मैंने आपको दिखाया कि एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी करता क्या है। तो एक मेथड है जो कमांड को क्या कर रहे हैं हम लोग, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये वाला जो ऑपरेशंस रहेगा इट विल रिटर्न द इंटीजर वैल्यू ना। सो यू कैन टेक वन इंटीजर वेरिएबल टू स्टोर दिस, जैसे कि रो करके एक वेरिएबल है इंटीजर में। सो इट विल रिटर्न समथिंग एल्स ना, कि अगर सपोज कर लो कि अगर मैंने इंसर्ट वाला क्वेरी पास किया इसमें, तो इंसर्ट क्वेरी के बाद अगर आपका रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है क्या, अगर रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया तो लाइक इट विल रिटर्न द वन वैल्यू, इफ इट इज नॉट इंसर्टेड देन इट विल रिटर्न द जीरो वैल्यू, बट इट इज नॉट रिटर्निंग एनी बूलियन वैल्यू। ठीक है। आप कंसिडर करोगे कि लाइक 1 एंड 0 अगर रिटर्न करे तो बूलियन वैल्यू, नो, इट इज रिटर्निंग ओनली द इंटीजर वैल्यू। ठीक है। इट विल रिटर्न ओनली दैट रिकॉर्ड्स ओनली लाइक व्हेन इट विल रिटर्न समथिंग। तो अगर सपोज करो कि आपका रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है डेटाबेस के अंदर, सो देन ओनली इट विल रिटर्न द वन रिकॉर्ड ओनली हियर।
ठीक है। और अगर रिकॉर्ड 1 अगर इसने रिटर्न किया तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका क्वेरी प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है यहाँ पे। सो व्हेन वी नीड टू यूज दिस एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी वाला पार्ट while the DML operations, तो ये आपको DML operations के लिए यूज करना है। When see SQL command is like one of the command where we can pass like all the queries, that the DQL, DML, all the things we can pass inside this. But again, when we need to choose like this kind of this execute non query or like what others, the execute non query आपको उसी टाइम यूज करना है जब आपका DML operations को जो वहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। बट अगर DML कर रहा हो, अगर सपोज कल आप DQL वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, सो डोंट यूज दिस execute non query for the DQL, बिकॉज DQL के अंदर आप सिलेक्ट वाला क्वेरी पास करो तो सिलेक्ट वाला क्वेरी यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी इंटीजर में रिटर्न होता है। इंटीजर रिटर्न करना इन द सेंस कुछ तो आप उसके अंदर अप्लाई कर रहे हो, कुछ तो चेंजेस हो रहा है आपके टेबल के अंदर स्ट्रक्चर में। और जब इस सिलेक्ट वाला क्वेरी पास करते हो उसमें हम लोग कुछ चेंजेस नहीं करते हैं, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ फेच करते हैं जो पहले से टेबल के अंदर पड़ा हुआ है, जो पहले से डेटाबेस के अंदर है, उसी को सिर्फ हम लोग फेच करके ले रहे हैं यहाँ पे डेटाबेस से, करेक्ट। बट इन दिस केस यहाँ पे कुछ हम लोग फेचिंग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ अफेक्ट हो रहा है डेटा, कुछ तो अफेक्ट हो रहा है वहां पे, क्यों, कुछ तो अप्लाई हो रहा है वहां पे डेटा में, कुछ अगर इंसर्ट कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, तो कुछ तो चेंजेस दिख रहा है वहां पे। तो जे चेंजेस जो हमारा वहां पे अफेक्ट हो रहा है वो सिर्फ ये उसको लाइक ये रिफ्लेक्ट कर सकता है एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। बट इन केस ऑफ लाइक द DQL क्वेरीज लाइक वी नीड टू गो विद दी सेम, देखो CMD ऑब्जेक्ट ही रहेगा। तो यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा वन मोर क्लास दैट इज SQL डेटा रीडर। तो यहाँ पे देखो मैं क्लास बना देता हूँ, आपको यूज करना है ये वाला क्लास SQL डेटा रीडर। और SQL डेटा रीडर का क्लास का मैंने यूज तो आपको बता दिया, इसका यूज क्या होता है, लाइक टू फेच लाइक नंबर ऑफ रोज, n नंबर ऑफ रोज ये फेच करके देता है आपको टेबल में से। इसका ऑब्जेक्ट बना दो, RD इज इक्वल्स टू सपोज न्यू SQL डेटा रीडर। ठीक है। और ये रीडर वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको आपको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। बट यहाँ पे देखो जो ऑब्जेक्ट हमारा बना है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट मेरा रॉन्ग है, मैं SQL डेटा रीडर का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, क्यों, बिकॉज मुझे एग्जीक्यूट किसको करना है, CMD को एग्जीक्यूट करना है। तो ये वाला पार्ट मेरा रॉन्ग हो गया, देखो यहाँ पे ये ऐसे नहीं बना सकते हम लोग। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, ये जो CMD है ना कमांड, ये कमांड को हम लोग क्या करेंगे, कमांड डॉट एग्जीक्यूट रीडर। तो देखो इसका ऑब्जेक्ट ऐसे बनता है, यहाँ पे कमांड को एग्जीक्यूट कर रहा हूं, क्यों, तो कमांड के अंदर मेरा जो क्वेरी है इसको एग्जीक्यूट करके मुझे रिकॉर्ड्स उसके अंदर से फेच करवाने हैं। और जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स यहाँ पे फेच हो गए ये किसके अंदर स्टोर हो गया, RD के अंदर। अभी RD के अंदर रिकॉर्ड फेच होने के बाद इसको रीड कैसे करेगी, ठीक है। RD ने क्या किया, SQL क्वेरीज के थ्रू जितने भी रिकॉर्ड थे उसको मुझे फेच करके लाया वहां पे, फेच करके जितने भी रिकॉर्ड थे वो सब मुझे लाके दिया उसने टेबल्स के अंदर से। बट इसको अभी रीड करना है, तो रीड करने के लिए वी विल यूज RD dot we will use one function that is named as the read. So what it will do, it will just try to read all the rows। ठीक है। और इसने क्या किया, सिर्फ आपको ये DQL के लिए आपको यूज करना है, DQL के लिए, DQL ऑपरेशन के लिए, टू फेच ऑल रोज फ्रॉम योर टेबल। देखो ये मेन पार्ट है, लाइक यहाँ पे एग्जीक्यूट रीडर आपको कब यूज करना है, तो जब भी आपको अगर ये कुछ चीजें परफॉर्म करने रहेगी, लाइक अगर आपको कुछ भी चीजें अगर फेच करनी रहेगी, तो फेचिंग के टाइम पे लाइक वी कैन गो फॉर लाइक दी SQL डेटा रीडर, जो क्या करेगा, आपको रिकॉर्ड्स फेच करके दे देगा वहां से। और डेटा फेच करके हम लोग उसे रीड करने के लिए क्या करेगा, RD डॉट रीड करके फंक्शन यूज करेंगे। बट अगेन देखो ये RD क्या करते हैं, RD आपको और एक फंक्शन पास करके देता है, जैसे रीड वाला फंक्शन है जो क्या करेगा, रोज को रीड करेगा। बट हाउ टू चेक वेदर द रोज आर प्रेजेंट, वेदर द रोज प्रेजेंट और नॉट इन द लाइक द टेबल। ठीक है, वो उसको कैसे चेक करेंगे हम लोग, अभी प्रेजेंट है कि नहीं है वो। समटाइम ऐसे भी हो सकता है, कुछ प्रोबेबिलिटीज है कि लाइक वो टेबल में 0 रोज हो सकते हैं। But in other cases like we can see in single table like we will get the n number of rows, correct। but उसको कैसे चेक करेंगे कि मेरे पास रोज है कि नहीं। अगर आपने देखा रहेगा कोई भी अगर वेब एप्लीकेशंस में हम लोग अगर देखते कोई एप्लीकेशंस में तो वहां पे वो लोग क्या करते हैं, अगर कहाँ पे कुछ डेटा रहता है, अगर कुछ भी डेटा नहीं रहेगा टेबल में तो वहां पे आता है नो डेटा फाउंड और नो रिकॉर्ड्स फाउंड।
तो हम लोग कैसे चेक करेंगे कि भाई इसके अंदर डेटा है कि नहीं है। पहले तो डेटा चेक करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, सेम आरडी वाला ऑब्जेक्ट है, बट आरडी के थ्रू एक मेथड हमें पास करके देता है, उसका नाम रहेगा इसके अंदर दैट इज आरडी डॉट हैज रोज फंक्शन। सो यहाँ पे यूज करें आरडी डॉट हैज रोज। ठीक है, हैज रोज इज लाइक द वन ऑफ द फंक्शन, इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द एसक्यूएल डेटा रीडर ओनली टू चेक द नंबर ऑफ एंट्रीज, टू चेक एंट्री इज प्रेजेंट और नॉट। ठीक है, मतलब रिकॉर्ड्स को चेक कर रहा है, अगर रिकॉर्ड्स आपके पास टेबल में अवेलेबल है कि नहीं है, अगर प्रेजेंट रहेगा देन ओनली लाइक इट विल वर्क। सो ये जो लाइक हैज रो वाला फंक्शन है वो आपको कहाँ पे पुट करना चाहिए, जहां पे रीड करने से पहले ना, रीड कब करोगे, अगर एंट्रीज रहेगा तो ही जाके मैं रीड करूंगा, और लाइक ऐसे तो नहीं होगा पहले रीड करोगा उसके बाद में वहां पे चेक करने जाओगा कि मेरे पास एंट्रीज है कि नहीं, वैसे नहीं। ठीक है, जैसे आपका ये ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट के बाद बिफोर रीड आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको ये फंक्शन देना पड़ेगा। इफ यू नॉट गिविंग द फंक्शन देन आल्सो इट इज फाइन। वो क्या करेगा, वो सिर्फ चेक नहीं करेगा है कि नहीं है, वो डायरेक्टली आप उसको रीड भी कर सकते हो। बट अगर आपको सिक्वेंशियल जाने या लाइक स्टेप्स वाइज जाना रहेगा तो स्टेप्स वाइज आपको कैसे क्या करना पड़ेगा, पहले तो हैज रो वाला फंक्शन हैज रोज क्या करेगा, चेक करेगा उसके अंदर नंबर ऑफ रोज पहले तो प्रेजेंट है कि नहीं है, अगर प्रेजेंट है देन ओनली लाइक आई विल गो फॉर दिस फंक्शन दैट इज अ रीड फंक्शन टू रीड इट। जितने भी नंबर ऑफ एंट्रीज वहां पे मिल रहा है उसको रीड कर लो अभी। क्यों, बिकॉज रीड करने के बाद उसको मुझे फेच भी करवाना है, डिस्प्ले भी करवाना है। तो डिस्प्ले कैसे करेगा फिर, अगर सपोज कर लो कि मैं एम्प्लॉयज की एंट्रीज अगर यहाँ से फेच कर रहा हूँ, तो एम्प्लॉयज की एंट्रीज फेच करने के लिए मैं कैसे डिस्प्ले कर लो, अभी मेरी जो एंट्रीज मैंने रीड की है वो आरडी ऑब्जेक्ट के अंदर है यहाँ पे। ठीक है, सो जा यहाँ पे आपको यूज कैसे करना पड़ेगा, देखो इसको आरडी स्क्वायर ब्रैकेट, सी हियर इन दैट यू नीड टू पास योर कॉलम नेम। देखो यहाँ पे मैंने आईडी के अंदर क्या डिफाइन किया, यहाँ पे कॉलम नेम आपको डिफाइन करना पड़ेगा। कॉलम नेम कौन सा, जो टेबल के अंदर आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, टेबल के अंदर जो प्रेजेंट रहेगा वही कॉलम देना है। अगर सपोज कर लो मेरे पास आईडी वाला कॉलम है, जो एम्प्लॉय टेबल के अंदर आईडी वाला कॉलम, बट आईडी के जगह पे मैंने ई आईडी करके लिखा, जो ई आईडी करके कॉलम प्रेजेंट ही नहीं है, तो क्या करेगा ये, इट विल शो द एरर, व्हाट इट विल से कि देयर इज नो कॉलम नेम एज ई आईडी। ठीक है, सो लाइक देखो मेन बेसिकली यूज क्या है, देखो यहाँ पे जब भी कुछ कॉलम पुट करोगे तो फेचिंग इट ना, अब इसने रीड भी करके दे दिया, रीड करने के बाद अभी मुझे इसको डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले करने के लिए आरडी के अंदर से मुझे इसको बताना पड़ेगा ना, सारे कॉलम तो एक साथ नहीं आएंगे, उसके अंदर एक एक कॉलम को मैं फेच करने जा रहा हूँ। तो एक एक कॉलम फेच करने के लिए यहाँ पे आपको कॉलम का नाम आपको पास करना पड़ेगा, जो कॉलम आपको चाहिए। तो वहां पे एक सिंगल एम्प्लॉय टेबल के अंदर आपके पास एन नंबर ऑफ कॉलम हो सकते हैं, और उसके अंदर से कौन सा कॉलम आपको फेच करना है, वो स्पेसिफिक कॉलम का एंट्री आपको वहां पे देना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट लाइक वो क्या करेगा, वो स्पेसिफिक कॉलम को आपको फेच करके दे देगा फिर। ओके, सो इट इज अबाउट व्हाट लाइक, देखो अगर आप डीक्यूएल के साथ काम करोगे तो डीक्यूएल में आपको बहुत सारी चीजें परफॉर्म करनी है। पहले तो आप चेक करोगे कि एंट्री है कि नहीं, अगर एंट्री मिला, एंट्री मिलने के बाद उसको जाके फिर से रीड कर लो, जितने भी एन नंबर ऑफ एंट्रीज आपको मिले, रीड होने के बाद अगेन उसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए जो आरडी ऑब्जेक्ट आपका बन रहा है रीडर वाला, उसको क्या करना पड़ेगा, वो कॉलम के थ्रू आपको उसको फेच करना पड़ेगा, कौन सा कॉलम फेच करना है। सो इट विल लाइक द थर्ड वन स्टेप दैट इज एग्जीक्यूटिंग द क्वेरी, हाउ टू एग्जीक्यूट द लाइक द डीएमएल एंड डीक्यूएल क्वेरीज हियर, and what will be the like next steps, so that will be the fourth वाला step, that is the last step। तो देखो फोर्थ वाला स्टेप्स क्या रहेगा इसका, जो फोर्थ वाला स्टेप्स रहेगा इसका, क्लोज द कनेक्शन। तो जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट आपका काम कर रहा है, कनेक्शन को आपको क्या करना है, क्लोज करना है, बट इट इज अगेन ऑप्शनल, नो नीड टू क्लोज दिस लाइक कनेक्शंस एवरी टाइम। तो कनेक्शन को क्यों क्लोज किया जाता है, देखो जैसे कनेक्शन का ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, कॉन करके बनाया हुआ है हम लोगों ने ऊपर डॉट, इसको क्लोज करने के लिए हमारे पास एक मेथड है, जैसे क्लोज वाला मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, आपका कनेक्शन क्लोज करेगा, टू क्लोज द कनेक्शन। बट देखो एक चीज है, जैसे कनेक्शन को आपने स्टार्ट किया कौन से मेथड के थ्रू, ओपन के थ्रू, तो जैसे ओपन मेथड यूज किया तो ओपन मेथड के थ्रू आपका कनेक्शन स्टार्ट तो हो गया, और स्टॉप कर लिया आपने क्लोज वाले ऑब्जेक्ट से। बट ये प्रॉब्लम क्या होगा, फिर एक बार आपने क्लोज कर दिया तो फिर से आप जब नेक्स्ट टाइम फिर से आप यूज करने जाओगे कनेक्शन को, तो एवरी टाइम यू नीड टू स्टार्ट योर कनेक्शन। अगर सपोज कर लो कि मेरे पास एक मेथड है, जैसे लाइक डिस्प्ले वाला मेथड है, डिस्प्ले, जिसके अंदर मैंने क्या किया है, यहाँ पे कनेक्शन को स्टार्ट करके रखा है, मतलब कनेक्शन को मैंने ओपन किया है, तो इसका मतलब कनेक्शन मेरा स्टार्ट हो चुका है। बट सपोज मेरा काम हो गया, यहाँ पे जो भी परफॉर्म करना था कर लिया, इसके बाद मैंने क्या किया, कनेक्शन को क्लोज किया, स्टॉप किया। तो इसके बाद अगर सपोज करो कि दूसरा कोई मेथड आ रहा है,
गेट मेथड सपोज कर लो आ रहा है यहाँ पे, तो गेट मेथड के अंदर फिर से कनेक्शन को आपको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, इससे अच्छा क्या है कि आप क्लोज मत करो कनेक्शन, बिकॉज हमें पता है कि हर एक कोई भी मेथड्स के अंदर मैं यूज कर सकता हूँ कनेक्शन को, और उसे बार बार मुझे क्लोज करना नहीं है। तो अगर आप एवरी टाइम इसको क्लोज करने बैठोगे तो एवरी टाइम उसको ओपन भी करना पड़ेगा फिर कनेक्शन को। ठीक है, सो डोंट बी डिपेंड्स ऑन दिस थिंग्स कि हर एक टाइम पे मैं कनेक्शन को ओपन करूंगा और फिर से क्लोज करने बैठूंगा। ठीक है, नहीं, क्लोज नहीं करना है उसको, एक ही बार लाइक ओपन करके रखो, और जैसे लास्ट एंड में उसका वर्क अगर फिनिश होता है तो उसके बाद उसको आप क्या कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो कनेक्शंस को। ओके, सो इट इज अबाउट व्हाट बेसिकली दिस इज द फोर्थ वन स्टेप्स। तो ये 4 स्टेप्स दिए गए, लाइक देखो 4 स्टेप्स को आपको बहुत अच्छे से करना है, इसको लाइक रिफर करना है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ तो लाइक इसको आपको लाइक एक टाइप से लाइक बाहर करना पड़ेगा, बिकॉज ये 4 स्टेप्स है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, पूरे डेटाबेस कनेक्शन का सेटअप बना सकते हो। जैसे एक्सक्यूएल कनेक्शन है, जो कनेक्शन स्टार्ट करके दे रहा है आपको कनेक्शन के लिए जो जो चीजें चाहिए, जैसे भी कनेक्शन स्ट्रिंग से और भी कुछ चीजें हैं जो रिक्वायर्ड है, वो सारी चीजें आपको ये प्रोवाइड करके दे रहा है। सेकंड चीज है एसक्यूएल क्वेरी अगर पास करने है तो वो क्वेरी पास करने के लिए आपको एसक्यूएल कमांड वाला क्लास पता होना चाहिए। अगर एसक्यूएल कमांड क्या होता है वही हमें पता नहीं रहेगा तो हम लोग क्वेरी कहाँ पे पास करेंगे फिर। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में हमारा एसक्यूएल कमांड भी सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। थर्ड स्टेप में हम लोगों ने देखा कि एग्जीक्यूटिंग द क्वेरी, क्वेरीज को जो क्वेरी आपने एसक्यूएल कमांड में पास किया उसको भी आपको एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने के भी डिफरेंट डिफरेंट वेज मैंने बता दिया कि एग्जीक्यूट नॉन क्वेरीज आप करोगे तो डीएमएल के ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करता है। क्यों? वहां पे कुछ तो आप चेंजेस करते हो, वेयर वी आर नॉट गोइंग टू फेच एनीथिंग ओवर इन दैट क्वेरी, बट इन द लाइक डीक्यूएल, तो डीक्यूएल के लिए मैंने बता दिया कि एसक्यूएल डेटा रीडर आप पास कर लो, या तो एग्जीक्यूट स्केलर भी आप यूज कर सकते हो। तो एग्जीक्यूट स्केलर के भी हेल्प से क्या कर सकते हैं हम लोग, सिंगल एंट्रीज को फेच कर सकते हो वहां पे। बट हियर वी आर नॉट लुकिंग फॉर द सिंगल एंट्री ओनली ना, हमें यहाँ पे हमारे पास एन नंबर ऑफ एंट्रीज है जो लाइक एम्प्लॉय टेबल के अंदर फेच का लाइक स्टोर करके रखे हुए हैं। तो सारे एंट्रीज को मुझे क्या करना है, वहां से फेच करना है। तो ऑल एंट्रीज को फेच करने के लिए मुझे एग्जीक्यूट डेटा रीडर की, सॉरी एसक्यूएल डेटा रीडर की जरूरत पड़ेगी। जो एग्जीक्यूट रीडर है ये यहाँ पे मेथड पास करेगा और उसके हेल्प से हम लोग डेटा को फेच कर पाएंगे फिर। ओके, एंड अगेन यहाँ पे भी देखा हम लोगों ने कि वो एग्जीक्यूट रीडर डायरेक्टली काम नहीं करता है। अगर आपको चाहिए तो हैज रोज फंक्शन से आप उसके अंदर के नंबर ऑफ रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। पहले तो डेटा इज प्रेजेंट और नॉट इन द टेबल, अगर प्रेजेंट रहेगा तो ही वर्क करना चाहिए, तो हैज रोज वाला फंक्शन दे दो फिर, और हैज रो फंक्शन होने के बाद रीड वाला फंक्शन टू रीड द एंट्रीज। और एक बार रीड हो गया उसके बाद आपको क्या करना है, तो डिस्प्ले करना है वो कॉलम को। तो डिस्प्ले करने के लिए जो ऑब्जेक्ट रहेगा आपका रीडर वाला, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप कॉलम का नाम स्पेसिफाई कर लो तो आपका कॉलम वहां पे फेच हो जाएगा। Okay, so it is about like the third step, and fourth step was what, like the closing the connection, that also like it's depend on you only। अगर आप कनेक्शन को क्लोज कर ले तो आप एक चीज ध्यान में रखो कि आगे वाला जो नेक्स्ट मेथड के अंदर फिर से अगर आप कनेक्शन को यूज करो तो फिर से आपको उसे स्टार्ट करना पड़ेगा। सो जस्ट लाइक बी रिमेंबर दिस थिंग कि लाइक एवरी टाइम जो स्टार्ट एंड स्टॉप करने मत बैठो कनेक्शन को, एक ही बार सिर्फ कनेक्शन को ओपन करके रखो, और लास्ट में एक बार लाइक आपका फिनिश हो गया कनेक्शन का पार्ट तो वहां पे आप क्लोज कर सकते हो। ठीक है, सो लाइक आई विल शो दैट लाइक इम्प्लीमेंटेशन पार्ट जो प्रैक्टिकल थिंकिंग रहेगी इसकी, इंप्लीमेंट कैसे करना है, जो मैं चीजें बता रहा हूँ कि कनेक्शंस कहाँ पे स्टार्ट करना है कहाँ पे स्टॉप करना है, तो वो भी इसका इंप्लीमेंटेशन में आपको दिखा होगा। ठीक है, कि डेटाबेस का ऑपरेशन कहाँ पे परफॉर्म करने हैं, उसका इंप्लीमेंटेशन कौन सी क्लास फाइल में करना है, तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट करके देखेंगे, वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले सेशन में। ओके, सो ये सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं।